In question number 1, it is said that Manoj deposits rupees 2000 per month. Now this is his monthly deposit, so let it be represented by P. Now he is depositing it in a RD account for 1.5 years. Now here this 1.5 years is the time, so let the time be represented by N. But remember, time should be taken in months. So we have converted 1.5 years into months at the rate of 8%. Rate is 8%. Now the question says we have to find the maturity value he receives at the time of maturity. Now the formula for the maturity value is P into N plus N into N plus 1 into P into R upon 2400. So this is the formula for maturity value. Now let us substitute the values over here. So we get maturity value is equal to, now P means monthly deposit, so that is 2000 into N. N is the time in month, that is 18, plus, now in the second term N is 18. 18 plus 1, that gives you 19. This P is the monthly deposit, which is 2000, into R is the rate of interest, that is 8 upon 2400. Now solving this one to get the maturity value, this will give you 36,000 plus, now let us reduce this. This you can see will be reduced by, first of all, by 8. 8 will give you 300. Now these multiple of 2 can be reduced over here. Sorry, multiple of 10 can be reduced. Now 3 will be reducing the 6. So you are left with 6 into 19 into 20. So let's solve this one. 6 into 19 into 20. So that will give you 2280. 36,000 plus 2280 will give you 38,280. So this will be the maturity value. Now in question number 2, they say Mr. Garg deposits a certain sum of money each month. So in this question, as you can see, monthly deposit P, that's unknown. In a recurring deposit account in a bank, if the rate of interest is 8%, so rate of interest is given 8%, and Mr. Garg gets rupees 8,088 from the bank after 3 years. So this is the maturity value given to you. It's rupees 8,088 and the time given to you is 3 years. Remember, time should always be taken in months. So 3 into 12, that will give you 36 months. Now as you can see, maturity value is given to us. So let us apply the base formula for the maturity value, which is Pn plus interest. Now see, in this formula, maturity value is known to us. Now P is unknown as well as interest is also unknown. Now in a formula, if two factors are unknown, we can't use that formula. So we will go for more modified formula for it. Maturity value is equal to Pn. Now in place of interest,
I can apply the formula for interest, that is P into n plus 1 into R upon 2400. दिस इज़ द फॉर्मूला. सी, ये फॉर्मूला हमने क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि इस फॉर्मूले में दो चीज़ें अननोन थी. एक तो पी अननोन था और दूसरा इंटरेस्ट भी अननोन था. तो अगर एक ही फॉर्मूले में आपके पास दो चीज़ें अननोन हो जाएं, डोंट अप्लाई दैट फॉर्मूला. तो हमने इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाइड फॉर्म करके लिखा, तो इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया. अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ एक चीज़ अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं. चलिए पुट करके देखते हैं इसमें. सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू, इट इज़ 8088. पी इज़ मंथली डिपॉजिट, ये आपको मालूम नहीं है. एन 36. फिर नेक्स्ट टर्म पे आ गए तो पी अननोन है, एन की जगह पे 36. फिर है एन प्लस 1, 36 प्लस 1 37 इंटू आर, दैट इज़ 8 अपॉन 2400. अब आप देखिए जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसमें सिर्फ पी अननोन है. तो अगर हमारे पास किसी फॉर्मूले में एक चीज़ अननोन हो तो उसको हम यूज़ कर लें. अब इसको हम पहले तो सिंप्लीफाई कर लें. यहाँ से 8 से इसको रिड्यूस कर दें तो ये आ जाएगा 300. फिर 3 से रिड्यूस करके ये 100 आ जाएगा. 3 से ये रिड्यूस हो जाएगा 12. तो आपके पास आ गया 8088. ये हो गया 36p प्लस. अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसको अगर आप चाहो तो रिड्यूस कर लो, और 4 से रिड्यूस कर लो तो 4 3 से 12, 4 से कर लो तो 25. अब ऊपर बचा आपके पास 3 इंटू 37. तो ऊपर आपके पास आया 111p और डिनोमिनेटर में आया 25. ना ऑन द राइट साइड हमारे पास दो टर्म हैं, तो पहले एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करें. एलसीएम विल बी 25. सो ये हो जाएगा आपके पास 36p इंटू 25 प्लस 111p. अब एलसीएम ले लिया तो नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 8088 इंटू 25. अब इधर आपके पास आ गया 36p इंटू 25. ये तो हो गया 900p प्लस 111p. इसको इसमें ऐड करेंगे तो आएगा आपके पास 1011p, 1011p. You need to get value for p, that is the monthly deposit. P is equal to 8088 into 25 upon 1011. Now reduce it. It will be reduced 8 times. So 8 into 25, that will give you rupees 200. So this will be his monthly deposit. See, in question number 3, they say Manish opened a RD account in a bank. He deposited rupees 2500 per month. So this is the monthly installment given to you, rupees 2500, right, for 2 years. Remember, time should always be taken in months. So it's 2 years. So you can say this will be 24 months. At the time of maturity, he gets rupees. This is the maturity value given.
rupees 67,500. Now first of all we need to find the total interest and then the rate of interest. Now as maturity value is given, so we will apply the formula for maturity value. जब फॉर्मूला कोई भी यूज़ करें, अगर फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज़ अननोन है तो उस फॉर्मूले को आप यूज़ कर लीजिए, और अगर दो चीज़ें अननोन हो जाएंगी तो फॉर्मूला वो यूज़ नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले में देखो, तो अगर मैं यहाँ से टैली करके देखूँ तो सिर्फ आई अननोन है, बाकी सब हमें नोन है। तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं मेच्योरिटी वैल्यू की जगह पे 67,500। अच्छा, ये जो आपके पास, सॉरी, ये x का मतलब यहाँ पे p है, x का मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास p, मंथली डिपॉजिट। तो n है आपके पास 24, p है 2500 प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 67,500, ये हो जाएगा आपके पास 60,000 प्लस इंटरेस्ट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7,500 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। तो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही कहा गया था कि फाइंड हिज इंटरेस्ट। ओके, अब इंटरेस्ट निकाल लिया, अब आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आफ्टर गेटिंग द इंटरेस्ट, अब हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लें। सो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2400। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर दें। इंटरेस्ट आपको मालूम चल गया है 7,500, P है 2,500, n आपके पास है 24, जो ब्रैकेट में है n प्लस 1, 24 प्लस 1 25, इंटू R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमें फाइंड करना है, अपॉन 2400। अब इसको आप लोग रिड्यूस कर लीजिए। So 7,500, 25 into 25, 625 R. So value of R will be upon 625। पहले 25 से रिड्यूस करें, फिर 25 से रिड्यूस करें। So the rate of interest is 12%. Now in question number 4, it's given Shobha has a RD account of rupees 340 per month. So this is the monthly deposit given to you, rupees 340 per month. Okay, at 6% per annum, so rate of interest is 6%. Now she gets rupees 7,157 at the time of maturity. So maturity value is given rupees 7,157. Find the time. Now time is represented by n, so we need to find the time. Okay, as the maturity value is given, so let's apply the formula for maturity value. Formula for maturity value is P into n plus I. अब इस फॉर्मूले में देखो, मैच्योरिटी वैल्यू पता है, P पता है, ना तो n पता है ना तो I। तो अगर किसी फॉर्मूले में दो चीज़ें अननोन हो जाएंगी तो वो फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले को हम आगे और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। अब हम इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो हमारे पास इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है P n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2400।
Now let's substitute the values in this formula. Maturity value is 7157. P is 340. So, and sorry, this is N. N we have to find 340N plus P is 340. N we have to find. So when you multiply this, it becomes N square plus N into R. R is given 6 upon 2400. So we have got this equation in terms of N. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, 6 से रिड्यूस कर लें तो ये आ जाएगा 400. एक मल्टीपल ऑफ 10 हटा दीजिए, रिड्यूस हो गया. 2 से रिड्यूस कर लें तो 17, 2 से रिड्यूस कर लें 20. ये हमारे पास आ गया 7157 इज इक्वल टू 340N प्लस, अच्छा यहाँ ऊपर अगर हम 17 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो वी आर गेटिंग 17N स्क्वायर प्लस 17N अपॉन 20. Now on the right side LCM ले लेते हैं. 7157 is equal to LCM will be 20. So this will give you 0.06800N plus 17N square plus 17N. Now cross multiply it. इधर 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 7 14, 11, 143, 140. राइट साइड में है 17N स्क्वायर. दीज टू आर द लाइक टर्म्स, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे. 6817N. तो अगर आप ये देखिए, इस टर्म को इधर करते हैं तो फाइनली वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये देखिए, जब भी आपको n फाइंड करने को कहेंगे यानी कि टाइम, यू विल ऑलवेज गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. ठीक है. नाउ सी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिड्यूसिबल बाय 17. अगर आप इस इक्वेशन को देखिए तो ये रिड्यूसिबल बाय है 17. अच्छा, इज इक्वल टू जो ज़ीरो लेफ्ट में उसको हम राइट में लिख दे रहे हैं. पहले 17 से ये रिड्यूस करेंगे तो n स्क्वायर, फिर 17 से इसको रिड्यूस कर 17 4 68, फिर 0. नाउ यू कैन टेक टू टर्म्स टुगेदर, 17 1 is 17 माइनस. नाउ इट्स 143 140 डिवाइडेड बाय 17. ये आपको देगा 8420. अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को अब हम लोग फैक्टराइज करके n की वैल्यू निकालेंगे. चलिए इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करें. तो हमें प्रोडक्ट में चाहिए 8420. प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव, राइट. तो देखिए हमको प्रोडक्ट चाहिए 8420 और प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है तो मींस डिफरेंस, और डिफरेंस आपको चाहिए 401. अब ऐसे दो नंबर हमें लेने हैं, तो अगर हम इसको फैक्टर्स बनाएं तो ये हो जाएगा 421 एंड 20. 421 एंड 20 का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो 401 आ जाएगा, और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करूँगा तो 8420. तो ये जो मेरा मिडिल वाला नंबर था ये, अब इसको मुझे इसको मैं ब्रेक करूँगा, इसको 401 को. तो देखिए 401 को हम लोग ब्रेक करें तो ये दो नंबर हो गए, 421 माइनस 20.
अब अभी देखिए ये आएगा n स्क्वायर 421n माइनस 20n 8420। अब आप इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो n प्लस 421, इसमें 20 कॉमन लेंगे तो n प्लस 421. So the two factors are n plus 421 and n minus 20. तो आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अब जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फर्स्ट वाले को इक्वेट करने पे आपके पास n की वैल्यू आएगी नेगेटिव। n रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, तो टाइम नेगेटिव में तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वैल्यू तो नहीं लोगे आप, नॉट पॉसिबल। दूसरा फैक्टर है n माइनस 20, ये आपको देगा n इज इक्वल टू 20। तो पॉजिटिव है तो ये वैल्यू हम ले लेंगे, क्योंकि n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मंथ्स, तो नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते थे, नंबर ऑफ मंथ्स पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ मंथ्स हैं 20। ध्यान रखिएगा ये n ने आपको टाइम दिया है और ये टाइम दिया है इन मंथ्स। अगर मुझे इसे ईयर में कन्वर्ट करना हो, क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, बट इन केस अगर क्वेश्चन में किसी मेंशन हो कि find the time in years, so you will divide it by 12, right? तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 5/3, दैट इज़ 1 होल नंबर 2/3 ईयर्स, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो इसमें देखिए सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इन बैंकिंग। In one, you have to get the maturity value or the interest. सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास आता है जिसमें आपको मंथली डिपॉजिट पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक जिसमें टाइम। सो प्रैक्टिस दीज 4 types of questions so as to get the command on this chapter.